Hello everyone, welcome to another class. I welcome all my lovely entrepreneurs of 11th grade to today's class. It's a very important class and it covers up the topic recording cash inflows and cash outflows. And it is from Unit 6, that is Business, Finance and Arithmetic. So dear students, I welcome you all to today's class. And this class is important from the examination point of view. You will surely get a question in the examination from this class. It could be an objective type question. It could be a fill in the blank or right or wrong, true and false statement. But surely you will get a question from this specific class. The past previous records of papers show this, that there is one or two questions come from this specific topic. So without much ado, let's start today's class. Dear students, in today's class, these are the points that we are going to cover up. The first one is recording cash inflows and outflows, cash register format for cash transactions only, understanding the columns of the cash register. Example, recording cash transactions. Exercise 1, cash transactions only. 6th, cash register format for cash and bank transactions. And exercise 2, cash and bank transactions. So it is going to be a very interesting class. And it is full of formats that you are going to, understand today and you are going to master in today's class. So let's start the class. Now, introduction to cash register. And something which is very, very important. None of the businesses across globe can do anything if they are not maintaining their regular cash register. Now the purpose is that you should be aware about the existing balance. आज कितना कैश आया है और कितना कैश बाहर गया है, यही एक्चुअली बिजनेस। इसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डूइंग बिजनेस। ये एक ऑर्गेनाइज तरीका है बिजनेस करने का। ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डूइंग बिजनेस। अब जो व्यक्ति अपने काम में जितना समय लगाएगा उस काम को मेंटेन करने में, उसे अंडरस्टैंड करने में, उसका उसके साथ उतना ही तालमेल बन जाएगा, उतना ही विल स्टार्ट गेटिंग नियर टू हिज और हर बिजनेस। बट अगर आपका अप्रोच बहुत ही केयरफ्री है, बहुत ही कैजुअल है, तो आप कभी भी अपने बिजनेस को, अपने वेंचर को सीरियसली नहीं ले। अब मेरी बात आप याद रखिएगा, जिस भी काम को आप सिंसियरली या सीरियसली नहीं करते हैं, इट कैन नेवर जनरेट रिजल्ट। इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। So let's take a point number 1. A cash register is a vital tool for tracking cash transactions in a business. एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसके बेसिस पर बिजनेस में कितने ट्रांजैक्शंस होते हैं कैश में, वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। इट एंश्योर्स एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ मनी रिसीव्ड एंड पेड। कितनी मनी रिसीव की गई और कितनी मनी पे की गई। मेंटेनिंग
फाइनेंशियल डिसिप्लिन। आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, मैं जिन भी फ्रेजेस को अंडरलाइन करता हूं, आप उन फ्रेजेस की एक लिस्ट बना लिया करें, क्योंकि जब आप इन फ्रेजेस को एग्जामिनेशन में लिखते हैं तो एग्जामिनर पे यू लीव अ लास्टिंग इंप्रेशन दैट द स्टूडेंट हैज स्टडीड डिफरेंटली एंड ही विल सिक्योर मार्क्स। तो मेंटेनिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन is the purpose of maintaining a cash register. For simplicity, we use a 6-column format to log only cash transactions. तो बच्चों सिंप्लिसिटी के लिए हम 6 कॉलम का फॉर्मेट यूज करते हैं इसके अंदर। यहां मैं लिख देता हूं 6 कॉलम। These columns include date, the day of the transaction, description, details of the transaction, furniture purchase or monthly expenses, reference number, the bill or voucher number associated with the transaction, cash received, the amount of cash received, cash paid, the amount of cash spent, cash balance, the remaining cash after each transaction. This format ensures clarity and ease of understanding for individuals unfamiliar with complex accounting practices. तो अगर आपको अपने पहले, तो मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर लूं, जिस किसी को भी अपने काम को आगे बढ़ाना है, जिस किसी को भी, वो सबसे पहले तो इन ट्रांजैक्शंस को पर फोकस करें, इन ट्रांजैक्शंस रेगुलर। क्योंकि अगर बिजनेस चलाना इतना आसान होता ना, तो दुनिया भर के लोग इस काम को सक्सेसफुली कर पा रहे होते। बहुत लोग कर लेते हैं और बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, एंड द रीजन इज दिस। एंड द सेकेंड वन इज कि अगर आप इस स्टेटमेंट को जरा ध्यान से सुने बच्चों, इस स्टेटमेंट को, whatsoever gets measured gets done। आप जिस चीज को मेजर करना शुरू कर देते हैं ना लाइफ में, मेरी बात आप याद रखिएगा, जिस भी चीज को आप मेजर करना शुरू कर देते हैं वो चीज पूर्ण होती चली जाती है, पूरी होती चली जाती है। तो मैं लिख देता हूं आपके लिए, आपको, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब बच्चों को मैं एनकरेज भी करता हूं अपनी क्लास में। Whatsoever gets measured gets done। किसी ने वजन कम करना है तो वो हर हफ्ते अपना वेट चेक करे 6 महीने तक। अगर वो नहीं भी कर पा रहा होगा ना, तो रेगुलर मेजरमेंट उसे एनकरेज करेगी टू डू समथिंग अबाउट रिड्यूसिंग द वेट द पर्सन इज पुटिंग। सो व्हाटसोएवर गेट्स मेजर्ड, जिस चीज को आप नाप सकते हैं, या तो उसे आप बढ़ा सकते हैं और या फिर उसको आप घटा सकते हैं। तो बिजनेस भी कुछ उसी प्रकार है, और जो आपका कैश रजिस्टर है उसकी मेंटेनेंस भी कुछ उसी प्रकार से। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2, simplified cash register format, cash only transactions। The cash register for cash only transactions looks as follows. The cash register balances provide a snapshot of available funds but do not represent profit। जो कैश रजिस्टर है बच्चों, वो आपको स्नैपशॉट देता है, एक ओवरव्यू देता है कि किस प्रकार से आपका अवेलेबल फंड है, पर ये कभी नहीं बताएगा कि उसमें कितना प्रॉफिट आपको हो रहा है। वो आप मैनुअली निकाल सकते हैं बट इट डजंट शो इट टू यू। कैश रजिस्टर में इस फॉर्मेट के अंदर ऐसा नहीं होता है। ईच एंट्री मस्ट बी रिकॉर्डेड प्रॉम्प्टली, जल्दी से।
टू अवॉइड मिस्ड ट्रांजेक्शंस। ये बिजनेस, देखिए कई लोग है ना बिजनेस को बहुत लाइटली लेते, और कई लोग बिजनेस को बहुत सीरियसली लेते। कई लोग दुकान बंद करने से पहले, अपना काम आज का खत्म करने से पहले, वो सारी ट्रांजेक्शन्स मिलाते, कितना पैसा गया कितना पैसा आया। पैसा आएगा तो काम आगे बढ़ेगा ना। जब पैसा आएगा ही नहीं तो फिर ऐसा बिजनेस करने का फायदा क्या। इससे तो अच्छा कोई व्यक्ति नौकरी कर ले। पर बिजनेस करना है तो यू हैव टू बी ऑलवेज ऑलवेज ऑन एन अलर्ट मूड। उसके लिए मैं सब बच्चों को एक राय बार बार देता हूं और लगातार देता हूं, और अपने कितने एंटरप्रेन्योर्स को भी, कि इफ यू वांट टू रन, you know, a good business, a business which is profitable, which has cash inflows more, outflows less, तो अपनी हेल्थ का भी आपने इक्वली उतना ही ध्यान रखना है। ओके, अब हम देखते हैं कैश ट्रांजैक्शंस के रजिस्टर को। इसमें फॉर्मेट पे ऑप्शंस है डेट, डिस्क्रिप्शन, रेफरेंस नंबर, कैश रिसीव्ड इन रुपीज, कैश पेड इन रुपीज, कैश बैलेंस इन रुपीज। तो जुलाई को ओपनिंग बैलेंस था 30,000 रुपये। फर्नीचर परचेज किया, उसका रेफरेंस नंबर था 3675, तारीख थी 1 जुलाई 2012। कैश पेड 15,000, और कैश बैलेंस कितना रह गया 15,000। परचेज ऑफ 3 डजन टी शर्ट्स, रेफरेंस नंबर 863, तारीख है 2 जुलाई 2012। कितने का 3600 रुपए का कैश पे किया गया। तो कैश बैलेंस आपके पास कितना बचा 11,004। बड़ा बिजनेस हो छोटा बिजनेस हो, ये कैश रजिस्टर मेंटेन करना अनिवार्य है, जरूरी है, टू सी द डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एग्जाम्पल ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। कंसिडर रतन सिंह, a shop owner with an opening balance of rupees 30,000 over July. His transaction include purchase, sales and expense. The recorded transactions are summarized in the following table. Regular updates ensures the accuracy of the cash register. आप once in a blue moon ना करें, आप रेगुलरली से अपडेट। देखिए हर काम का ना एक अपने लेवल का स्ट्रेस होता है, हर काम का। बिजनेस में ना थोड़ा सा स्ट्रेस आपको ज्यादा लेना पड़ता है, बिकॉज यू आर नो द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग योर बिजनेस और डिस्ट्रॉइंग इट। जॉब में अगर आप थोड़ा सा लाइटली भी चलते हैं ना तो आपको कम फर्क पड़ता है, बिकॉज वंस यू आर आउट ऑफ योर ऑफिस और जहां पे आप काम कर रहे हैं, तो यू कैन रिलैक्स। बट बिजनेस इज 24/7 × 365। तो इससे सबको हिदायत देता हूं कि बिजनेस स्टार्ट करना आसान है, छोड़ना उससे ज्यादा आसान है। मुश्किल है उसे कंटिन्यू करते रहे। सो 24/7 इंटू 365, और अगर लीप ईयर है तो 366। कुछ साल 10 to 15 years। उसके बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो बच्चों सिमिलरली 30,000 का ओपनिंग बैलेंस था July 7। डिस्क्रिप्शन सेल ऑफ टी शर्ट 3 डजन, रेफरेंस नंबर 6012 7/7/2012, कैश रिसीव्ड 7,200। तो 30,000 में 3700 आपने ऐड कर दिया तो आपका 37,200 हो। ऑन July 14, सेल ऑफ 5 डजन टी शर्ट्स, रेफरेंस नंबर 6087। अब देखिए रेफरेंस नंबर ही बढ़ते जा रहे। तारीख है 14 July 2012। कैश रिसीव 11,880। आपने यहां पर उसको ऐड कर दिया तो कैश बैलेंस कितना रह गया 49,080। अब
भाई आपको 11,880 कहां से मिला? बाय द सेल ऑफ 5 डजन टी शर्ट। जुलाई 31st, मंथली टी एक्सपेंसेस पेड, उस टाइम पे थोड़ा कम लगता था। रेफरेंस नंबर है 189 और डेट है 31/7/2012 और कैश पेड 300 रुपये। तो आज तो मेरे ख्याल से एक दिन की 300 रुपए की चाय होती होगी। तो कैश बैलेंस कितना हो गया? कैश अब पेड है तो 300 रुपए यहां से निकालेंगे, तो 48,780। सिंपल है, पर आपको इसका फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा। इट्स सिंपल। कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस। For businesses dealing in both cash and bank transactions, a more comprehensive format is needed. इसके लिए आपको थोड़ा comprehensive format चाहिए होता है। This format includes 3 additional columns. First one is check received, money received via check, check issued, payments made via check, and bank balance, the remaining bank balance after each transaction. तो बच्चों फॉर्मेट इस प्रकार से बनेगा: डेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट, रेफरेंस नंबर, कैश में हुआ है तो कैश रिसीव, कैश पे किया है तो कैश पेड, कैश बैलेंस। चेक रिसीव्ड किया है तो चेक का नंबर, चेक का बैलेंस, चेक का अमाउंट है। चेक इशू किया गया है तो नंबर और अमाउंट और बैंक बैलेंस। तो अगर आप ट्रांजैक्शन कैश में करते हैं तो कैश बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, और अगर आप चेक से करते हैं तो बैंक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको जनरली करंट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। उस पर आप मेरी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। एग्जाम्पल ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस। मुझे एग्जाम्पल ऐसे है: मेसर्स लक्ष्मी अ स्टेशनरी स्टोर ओनर begins January with 12,500 rupees in cash and rupees 25,000 in her bank account. Her transactions include. This format offers a holistic view of both cash and bank balances. So January 3, description: cash balance, cash received 9,500, cash balance 2,200 rupees, 22,000 rupees, and bank balance is 25,000. हो सकता है कहीं पर amount might be up and down. Just a minute, give me a second, मैं चेक कर लेता हूँ। 12,500 प्लस 9,000 मेरा ठीक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, 22,000 बिल्कुल ठीक है। और जो बैंक का बैलेंस पड़ा हुआ है वो 25,000 ऊपर की बना है आपका। स्टोर बिगिन हुआ था 12,500 से, 9,500 की कैश ट्रांजैक्शन हुई, तो एक्चुअल अमाउंट हो गया 22,000 और बैंक बैलेंस आपका 25,000 था। पेमेंट फ्रॉम एक्सेल कंपनी, चेक रिसीव 6,000, तो अगर बैंक बैलेंस हो गया 31। दिस इज द वे यू हैव टू मेंटेन कैश रजिस्टर ऑफ बैंक ट्रांजेक्शंस। अब benefits of regular record maintenance. Maintaining a cash register daily or after every transaction is very helpful. It helps a person to avoid errors or missed entries. आप errors को कम करते हैं और missed entries को maintain करे रखते हैं. Provides real-time cash and bank balances.
एक्चुअल में आज की डेट में अभी इसी वक्त आपके पास कितना कैश है और कितना बैंक बैलेंस है, आप उसको मेंटेन कर सकते। थर्ड, एनहांसेस डिसीजन मेकिंग फॉर फ्यूचर फाइनेंशियल एक्टिविटी। और जो भी आपने फ्यूचर में फाइनेंशियल एक्टिविटीज करनी होती है, अगर आपके पास प्रॉपर कैश रजिस्टर मेंटेन है और रियल टाइम में है, तो आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं एंड यू कैन डू फाइनेंशियल एक्टिविटीज प्रॉपर। और आप मेरी बात मान के चलिए कि आज कोई ऐसी एक्टिविटी है जो फाइनेंशियल ना हो। 100% ऑफ द एक्टिविटीज आर फाइनेंशियल। सुबह चाय का कप लेने से तक और रात को की चाय तक, everything is related to money. So that's why it's important. And here comes the last point, that is the conclusion. Recording cash inflows and outflows ensures financial transparency and control, whether using a simple cash only register or a combined cash and bank register. Accuracy and consistency are crucial for effective financial management. तो बच्चों, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के लिए और कंट्रोल के लिए मेंटेनिंग ऑफ cash inflows and outflows is very, very important. Whether using a simple cash only register or combined it with cash and bank register, जिसमें आप दोनों transactions check करते हैं, helps you to maintain accuracy and consistency and are crucial for effective management and effective financial management. So I believe this is the last point of the day. So today we have covered all these points. Recording cash inflows, outflows, cash register format for cash transactions only, understanding the columns of cash register, example, recording cash transactions only, cash register format for cash and bank transactions. So, bacho, with this point, we have come to the end of today's class. And don't miss our rigorous practice section of the day, which is very important and very, very helpful. आज है synopsis सबसे पहले, in English as well as Hindi. 10 sure short questions along with answers. Top 10 objective type questions along with answers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 with answers. Questions for practice with hints. Questions दे रखे हैं और आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उनके हिंट्स भी, आंसर्स भी साथ में गिवन है, सो दैट आप कहीं स्टक ही ना हो, आपको स्टक होने की जरूरत ही नहीं। तो हमने यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिए, 1, 2, और ये सॉल्यूशंस ऑफ ऑल दीज 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस है सारे आपके। 5 क्वेश्चंस यहाँ, 7, 6, just a minute, 6, 7, 8, 9, 10 और यहां पर इसके आंसर्स गिवन है। तो देयर इज नो प्रॉब्लम विद यू, आप क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, आंसर समझ में ना आए तो आप पीछे जाके आंसर्स को चेक कर सकते। सो बच्चों, today we have reached to the end of today's class. So until meet next time, bye bye for now. God bless you all, take care. और याद रखिएगा हमारा मिशन क्या है, that everybody in the country who wishes to learn entrepreneurship as a subject and to master entrepreneurship for business reasons can attend our class, and we are doing it absolutely without any charge. So until meet next time, bye bye for now. Stay blessed and continue learning
more concepts on entrepreneurship. Always remember, it's a session by Mavericks India Solution. With Mavericks India, you will always keep.